Hello my dear students. Today we will discuss about class 7th science chapter 6. The name of the chapter is heat and temperature. In this chapter we will discuss about what are the sources of heat, temperature and differences between heat and temperature, flow of heat and process of transfer of heat. Okay, so first we will discuss about heat. Heat can be felt but cannot be seen. It causes the feeling of hotness or coldness. In winter, we sit in the sun or near the heater and when we feel warm, तब हमें हीटनेस महसूस होती है. जब भी हम विंटर के टाइम में, ठंड के दिनों में जब भी हम हीटर के सामने या सन के सामने बैठते हैं, सन की रोशनी में बैठते हैं, तो हमें वार्मनेस मतलब थोड़ी गर्मी महसूस होती है. दिस इज ड्यू टू द हीट रिसीव बाई अस फ्रॉम द सन और द हीटर दैट वी फील वार्म बट व्हेन वी आर नॉट एबल टू सी इट. लेकिन हम बस उसे फील कर सकते हैं. हीट को हम हीटनेस या कोल्डनेस को बस फील कर सकते हैं, उसे देख तो नहीं सकते ना. ओके, so another method to keep us warm during winter is to wear warm clothes made up of wool, and it trap air and body heat to keep us warm. To feel and remain cool in summers, we sit in shade outside the building and wear clothes made up of cotton that are light and allow air to pass through. And ventilation keep the body cool. Inside the building, fans, desert coolers, AC and cool water are used to keep it cool. और अपने आप को ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं. साथ ही क्या करते हैं, बॉडी को इन द बिल्डिंग फैंस का यूज़ करते हैं, डेजर्ट कूलर का यूज़ करते हैं, फिर AC, कूल वाटर. इससे हम क्या करते हैं, कीप इट कूल. ये सब हमें क्या रखते हैं, ठंडा रखते हैं और इससे हमें ठंड का एहसास होता है. ओके, एंड हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है. ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है. Okay, after that our next topic is sources of heat. What are the sources of heat? First is, in cold weather the electric heater provide heat. Okay, and we use geyser to heat water. और हम क्या करते हैं, जब भी मौसम ठंडा होता है तो हम गीज़र का यूज़ करते हैं वाटर को गर्म करने के लिए. In all these appliances, a filament is present and electricity heats up the filament when it heats. Okay, and the next method is the sun is the ultimate sources of heat for all living beings on the earth. ओके, और जो दूसरा है वो क्या है, सन है. सन क्या है, सन की हेल्प से हमें हीटनेस मिलती है. प्लांट यूज द एनर्जी ऑफ द सन टू प्रिपेयर देयर फूड. ओके, एंड ह्यूमन बींग्स आर एबल टू सर्वाइव बाय द हीट ऑफ द सन. ओके, and the third one is fuels produce energy when they burn. ठीक है, जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है. वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल एंड कुकिंग गैस आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स. and the other sources of heat are volcanic evaporation, burning of fuels. Okay, these are the other sources of heat. And the friction of a kind of force that produce heat. जब हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथ को when we rub our palm they became warm. जब हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथ को एक साथ रब करते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है, became warm. वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. तो उसमें भी हीटनेस क्या होती है. ठीक है, सो दीज आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ हीट. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट. Heat has no shape, no mass, no color, no volume and no weight. It is an invisible form of energy. And the second one is the presence of heat is felt only through its effects on matter.
एंड द थर्ड इज हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, हीट क्या होता है, वन बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफ़र भी हो जाता है। इट फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि वो मतलब ऑल डायरेक्शन में फ्लो करता है। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, हीट एनर्जी कैन बी चेंज टू लाइट एनर्जी। On heating iron, it becomes red hot and light, and heat energy can also be converted into mechanical energy. Okay, for example, a steam can move an engine. Okay, and last is the conversely other forms of energy can be transferred into heat energy. For example, on burning a candle, the chemical energy is transformed into heat and light energy. Okay, and when we switch on an electric bulb, the electric energy get transferred into heat and light energy. जब हम क्या करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एंड लाइट एनर्जी में. ओके, and after that next topic is flow of heat. Okay, hot objects converted into cold object. ठीक है, जब hot object को क्या करते हैं, कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, cold object में. कैसे? The flow of heat from one body to another take place in nature. ठीक है, it is from hot object to a cold object. जैसे कि आपने देखा होगा घर में खाना बनाते समय किचन में मम्मी लोग को वो लोग क्या करते हैं, हम गैस को जलाते हैं. ठीक है, और गैस के ऊपर जो भी बर्तन रखते हैं वो क्या होता है, वो ठंडा होता है ना. तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो जो बर्तन होता है वो पूरी तरह से गर्म हो जाता है. कैसे हो जाता है कि जो हॉट मतलब एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, जो ठंडा ऑब्जेक्ट था, जो ठंडी चीज़ थी वो भी कैसे हो गई, गर्म हो गई. तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हुआ ना, वन बॉडी टू अनदर. वो कोल्ड ऑब्जेक्ट था, वो हॉट था, तो जो हॉट ऑब्जेक्ट था उसने कोल्ड ऑब्जेक्ट को भी क्या कर दिया, हॉट कर दिया, गर्म कर दिया. ठीक है, एंड व्हेन वी टच द ऑब्जेक्ट, हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर. वी फील कोल्ड व्हेन वी टच द आइस क्यूब्स, and it is because our hand is hotter than the ice. On touching the ice cube, heat flow from our hand to the ice and we feel cold. Okay, and suppose we touch the water taken from a geyser. ठीक है, आपने क्या किया, उस वाटर को टच किया जो गीज़र से निकला हो, तो आपको कैसा फील होगा, हॉट फील होगा. एंड इट इज़ बिकम द वाटर टेकन फ्रॉम द गीज़र इज़ हॉटर एज कम्पेयर टू आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, और फिर हम उसका क्या करेंगे, अगर उसका कंपेयर करेंगे तो देखेंगे जो वाटर गीज़र से निकला हुआ है वो क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा. ऑन टचिंग दिस हॉट वाटर, हीट फ्लो फ्रॉम द बॉडी द वाटर टू आवर हैंड. एज अ रिजल्ट वी फील हॉट. ठीक है, फिर उसको हम जब टच करेंगे तो जो गीज़र से निकला हुआ वाटर होगा वो कैसा होगा, हॉट होगा. व्हेन अ हॉट बॉडी कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड बॉडी, इट इज़ ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम द हॉट बॉडी लूजेस some of its heat and the cold body also became less cold. Okay, clear how heats absorb, how heat pass one another. And this is because of the transfer of heat in both object. इसमें क्या मतलब जो हीट होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे जो भी ठंडी चीज़ है उसको गर्म कर देता है. ठीक है, और जो भी गर्म लाइक दिस इज नोन एज. And after that next is transfer of heat. Transfer of heat. Okay, the flow of heat from one body to another or from one part of the body to another is called transfer of heat. मतलब क्या करते हैं, फ्लो ऑफ बॉडी, जैसे कि हीट क्या करता है, वन पार्ट से, वन बॉडी से अनदर बॉडी को क्या करना, फ्लो मतलब ट्रांसफ़र होना. दिस इज़ नोन एज ट्रांसफ़र ऑफ हीट. इट कैन टेक प्लेस इन 3 different ways. So let me explain with example. Like a teacher want to distribute apple to the whole class. Okay, so there are 3 ways to doing this. First, पासिंग मेथड में क्या होगा, अगर मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स हैं,
3 या 4 स्टूडेंट्स है जो लाइक एक सीरियल लाइन में खड़े हैं। पासिंग मेथड में क्या होगा, एक स्टूडेंट पहले दूसरे को वो बॉल पास करेगा, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। ये हो गया पासिंग मेथड, ठीक है। मूवमेंट मेथड में क्या होगा, मूवमेंट मेथड में मूव करके लाइक ऐसे 1 से यहाँ से मूव करके फिर दूसरे को, सेकेंडली द टीचर। एंड द थ्रोइंग मेथड में क्या होगा कि मतलब बॉल को टीचर बॉल को थ्रो करेगी, फेंकेगी। द टीचर कैन थ्रो बॉल्स एंड स्टूडेंट दे कैच देम, और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसे कैच करेंगे, ठीक है। पासिंग मेथड, द टीचर कैन आस्क द स्टूडेंट टू स्टैंड इन अ लाइन and she hand over the apples to the first child, who passes it to the second child, and the second child passes it to the third child, and the third is this process continuous till each is to has an apple. Clear? So this is known as passing method में क्या हो रहा है, फर्स्ट चाइल्ड बॉल को पास कर रहा है सेकेंड चाइल्ड को, सेकेंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, और लाइक यही कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस चलता जाएगा। मूवमेंट मेथड, सेकेंडली द टीचर कैन आस्क ईच स्टूडेंट्स टू कम टू हर 1 by 1, ठीक है। 1 by 1 उनके पास आएंगे, टेक एन एप्पल एंड देन, और फिर 1 by 1 उस टीचर के पास आएंगे एक एक बच्चे, और फिर क्या करेंगे, एप्पल को लेके जाके अपनी सीट पे बैठ जाएंगे। एंड थ्रोइंग मेथड, also the teacher can throw apples toward the student and they can catch them. टीचर क्या करेंगी इसमें, इस मेथड में क्या करती है, एप्पल को थ्रो करेंगी, थ्रो करने का मतलब फेंकेंगी, और स्टूडेंट्स उसको 1 by 1 कैच करते जाएंगे। सो मेथड ऑफ गिविंग एन एप्पल बाय टीचर। ओके, सो my some topic is completed, and leftover topic I will explain in my next video. So hope you all understood. Bye students.